My lovely students, welcome to Mathological. This is the seventh session on permutations and combinations. Start करते हैं session को. And if you have not already subscribed to the YouTube channel and you like the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join the Telegram or WhatsApp channel by the name Mathological. And for any questions or queries regarding preparation, you can always message me at ADITYAKT. So first question of this session. In how many ways can 5 girls be arranged in a line such that 2 particular girls are always together? So 5 girls are there in total and they have to be arranged in a row in a line such that condition क्या है, 2 particular girls are always together. So how many ways will be there if 2 particular girls are always together? Okay, solve करते हैं इसको. So first of all, let us assume the girls are A, B, C, D. A, B, C, D, E. And the condition is that 2 particular girls, not 2 girls in general, because वो तो हमेशा ही साथ में रहेंगी, because 5 girls को arrange कर रहे हैं. 2 specific girls out of these 5, they are always together. Let us assume कि D and E, they have to be always together. तो क्या क्या cases बनेंगे? अगर A, B, C, D, E 5 girls are there which have to be arranged, तो cases could be A, B, C, D, E. तो D and E are together in this case. Or it could be B, D, E, C, A. यहाँ भी D and E are together. Or the case could be E, T, A, C, B. तो still they are together. ठीक है, साथ में है, D and E are together. अब इनका पोजीशन आपस में तो अरेंज हो सकता है. तो first condition is that we have to keep these two particular girls together. Okay, so we'll consider them as one unit because इनको साथ में ही रहना है. So let us say this is a one unit. D and E are together. इनको एक ही बॉक्स में बंद कर दिया. So basically there are 4 things to be arranged, 4 items to be arranged, 4 groups to be arranged, to be specific. एक ग्रुप में A गर्ल है अकेली, एक ग्रुप में B गर्ल है अकेली, एक ग्रुप में C गर्ल है अकेली और एक ग्रुप में हमारे पास D and E 2 girls are there because they have to be together. Now since there are 4 groups, so number of ways of arrangement of these 4 groups will be 4 factorial. And D and E can arrange among themselves. या तो पहले D आएगी फिर A आएगी या फिर पहले E आएगी फिर D आएगी, तो इनका अरेंजमेंट आपस में हो सकता है. तो मल्टीप्लाइड बाय arrangement of D and E together, that is 2 factorial. So 4 factorial into 2 factorial, this will be our answer. Isn't it so? क्या clear है? So answer will be basically 24 into 2, 48. 48 ways are there in which these 2 particular girls are always together. Okay, clear है? अब इसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक सेकंड मेथड भी हो सकता था, उसको भी देखते हैं. बट बिफोर लेट अस सॉल्व दिस सेकंड क्वेश्चन. That 5 girls have to be arranged in a line such that 2 particular girls are never together. They are never together. पहले वाले केस में था always together, अब यहाँ पे है never together, कभी भी साथ में नहीं हो. Again let us assume the girls are A, B, C, D, E और D और E की ही बात करते हैं कि D और E के आपस में कट्टी हो गई, झगड़ा हो गया इनका. सो नाउ D and E don't want to be together. तो इनको सेपरेटली रखना पड़ेगा. केसेस कैसे कैसे होंगे? इट कुड बी A, B, D, C, E was D and E can't be together. और इट कुड बी D, B, A, C, E. ठीक है, या फिर डी और ई आपस में तो नहीं हो सकता. सो इट कुड ऑल्सो बी ई, बी, ए, सी, डी पॉसिबल है. बस ये है कि इनको सेपरेट रखना है इस बार ये दोनों साथ में नहीं रह सकते. और जब दो लोगों को हमें सेपरेट रखना हो, व्हेन वी वांट 2 particular girls not to be together, so we must at least put one girl between them. उनके बीच में कम से कम एक गर्ल आना चाहिए, तभी तो वो सेपरेट रह पाएंगे. Isn't it so? और बेसिकली ए, बी और सी पे कोई कंडीशन नहीं है या अदर 3 गर्ल्स पे कोई कंडीशन नहीं है. तो पहले वी कैन अरेंज अदर 3 गर्ल्स. फर्स्ट वी कैन अरेंज अदर 3 गर्ल्स एंड देन वी कैन पुट द रिमेनिंग 2 गर्ल्स अकॉर्डिंगली. ओके, तो पहले हम बाकी 3 गर्ल्स को अरेंज कर लेते हैं और उसके बाद में फिर 2 गर्ल्स जो बची हमारी डी और ई उनको अरेंज करेंगे. सो अरेंजमेंट ऑफ ए, बी एंड सी, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल. 3 गर्ल्स 3 फैक्टोरियल वेज होगा. नाउ लेट्स से ए, बी, सी को अरेंज कर दिया हमने. तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. नाउ डी और ई को सेपरेट रखना है तो कहाँ कहाँ आ सकते हैं? ईदर वन ऑफ देम कैन बी बिटवीन ए एंड बी और वन ऑफ देम कैन बी बिटवीन बी एंड सी, या फिर आफ्टर सी या फिर बिफोर ए. So in any scenario, ABC किसी भी तरह से अरेंज हो, in any scenario we will be having 4 choices for these 2 girls. इन 4 में से किन्हीं 2 प्लेसेस पे D और E आएंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर D यहाँ पे आया, E यहाँ पे आया, तो केस बन जाएगा हमारा D, A, E, B, C. ठीक है, या फिर अगर D यहाँ पे आया और E यहाँ पे आया तो केस हमारा बन जाएगा D, A, B, E, C.
and accordingly other cases. Okay, so 3 factorial तरीकों से we arranged A, B and C. Now there are 4 spaces out of which 2 have to be filled because ultimately 2 ही girls हैं, तो 4 में से 2 ही places fill होगा, उनको select करना पड़ेगा. तो पहले ने 3 factorial से arrange किया A, B, C को. Then second process भी करना है. Second process क्या करना है? You have to select 2 places out of 4 for D and E. Selection of seats for D and E, the particular 2 girls. एंड देन उनको अरेंज करना पड़ेगा उन 2 प्लेसेस पे. अरेंजमेंट के मेथड्स कितने होंगे? 2 फैक्टोरियल. 4c2 into 2 factorial. 4c2 into 2 factorial. This will be our answer, which will be equal to 6 into 4c2 is 6 and 2 factorial is 2. So this is equal to 72. Total ways will be 72 when 2 particular girls are never together. अब पहला वाला केस था हमारा कि 2 particular girls are always together. सेकंड केस है हमारा 2 particular girls are never together. टोटल केसेस कितने होते हैं अगर हम 5 गर्ल्स को अरेंज करते? Total cases of arrangement would have been 5 factorial. Out of these 5 factorial cases में से भाई डी और ई, क्योंकि 2 ही बच्चे हैं, 2 ही गर्ल्स हैं, तो दीज 2 गर्ल्स या तो ये साथ में होती है, क्या ये सेपरेट होती है? 2 ही केस पॉसिबल थे. ठीक है, सो इधर दे विल बी टुगेदर और नेवर टुगेदर, तो 2 ही केसेस बनेंगे हमारे. व्हेन दे आर ऑलवेज टुगेदर इन अ ग्रुप, नंबर ऑफ वेज कितने आए थे हमारे? 48 आए थे. एंड व्हेन दे आर नेवर टुगेदर, तो वेज आए हमारे 72. एंड देयर टोटल शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल और टोटल केसेस, बिकॉज यही 2 केस पॉसिबल थे. या तो फर्स्ट केस होगा कि दे आर ऑलवेज टुगेदर, या सेकंड केस होगा दे आर नेवर टुगेदर. तो टोटल मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ केसेस. ओके, क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन. In how many ways can 5 boys and 4 girls be arranged on a bench if boys and girls sit in separate groups? हर एक क्वेश्चन में pause the video and first think the logic yourself. ठीक है, गलती करोगे कोई दिक्कत नहीं है और डिफिकल्ट लगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट टेक योर टाइम. जितना टाइम हर एक क्वेश्चन के साथ स्पेंड करोगे अपने एंड पे, जो गलतियां भी करोगे वो धीरे धीरे तुम्हें वो गलतियां ही सिखाएंगी. बट पेशेंटली अपने एंड पे लॉजिक अपना समझना जरूरी है, तुम्हारा खुद का समझना जरूरी है. सॉल्यूशन देखने के बाद में चीजें तब समझ में आती हैं जब सॉल्यूशन देखने से पहले हमने अपना हार्डवर्क किया होता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन की लैंग्वेज को प्रॉपर्ली समझा होता है, अकॉर्डिंगली अपना लॉजिक प्रिपेयर किया होता है कि इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इवन इफ तुमने कहीं पर एरर किया, बट स्टिल वो लॉजिक तुमने फॉलो किया तो आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहाँ पे तुमसे मिस्टेक हो. अदरवाइज सॉल्यूशन देख के काम चलेगा नहीं. ठीक है, सो इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी अरेंज्ड ऑन अ बेंच इफ बॉयज एंड गर्ल्स सिट इन सेपरेट ग्रुप्स? तो इस बार क्या है, बॉयज का ग्रुप सेपरेट है, गर्ल्स का ग्रुप सेपरेट है. और बॉयज के ग्रुप में हमारे 5 बॉयज रहेंगे और आपस में तो अरेंज हो सकते हैं. सिमिलरली गर्ल्स के ग्रुप में देयर विल बी 4 गर्ल्स एंड दे कैन अरेंज अमंग देमसेल्व्स. ओके, अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि बॉयज का ग्रुप पहले है फिर गर्ल्स का ग्रुप आए कॉन्सिक्यूटिवली, या फिर गर्ल्स का ग्रुप पहले आए एंड देन बॉयज का ग्रुप आए. तो ये 2 पॉसिबिलिटीज भी हैं, यानी कि बॉयज विल बी सेपरेटली टुगेदर, बॉयज सारे के सारे साथ में रहेंगे, गर्ल्स विल बी टुगेदर in their own group and then boys and girls can arrange among themselves. So since there are 5 boys, the number of ways of arrangement of boys will be 5 factorial. Since there are 4 girls, the number of ways of arrangement of girls will be 4 factorial. And then girls और boys के ग्रुप आपस में अरेंज होंगे, ग्रुप्स अरेंज होंगे, रहेंगे बॉयज साथ में, गर्ल्स रहेंगे साथ में, बट आपस में अरेंज होगा. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट विल बी 2 factorial. So this answer will be 5 factorial into 4 factorial into 2 factorial. 5 factorial is 120, 4 factorial is 24 and 2 is 2, तो 48 into 120. 6 आ गया, 9 बचा, 48 प्लस 9 दैट विल बी 5760. ओके, ठीक है, क्या क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज कैन बॉयज एंड गर्ल्स बी अरेंज्ड ऑन अ बेंच सच दैट नीदर 2 बॉयज नॉर 2 गर्ल्स सिट टुगेदर? ना तो 2 बॉयज साथ में बैठेंगे ना ही 2 गर्ल्स साथ में बैठेंगे. और पार्ट ए है जहां पे कि देयर आर 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, एंड पार्ट बी में देयर आर 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स. तो हमें दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है. पहले पार्ट ए की बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम गर्ल्स को और बॉयज को सेपरेटली बिठाएंगे. लेट अस से बॉयज आर B1, B2, B3 एंड गर्ल्स आर G1 एंड G2. सो बॉयज को भी सेपरेटली बिठाना है और गर्ल्स को भी सेपरेटली बिठाना है, यानी कि बॉयज के बीच में गर्ल्स होनी चाहिए, यानी कि बिटवीन 2 बॉयज देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 गर्ल.
तभी तो बॉयज साथ में नहीं बैठ पाएंगे। और सिमिलरली अप्लाई होगा कि बिटवीन टू गर्ल्स देयर मस्ट बी वन बॉय, तभी तो गर्ल्स भी साथ में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि बॉयज को भी साथ में नहीं बैठाना है, गर्ल्स को भी साथ में नहीं बैठाना है। नीदर द बॉयज कैन बी टुगेदर टू बॉयज, नीदर टू बॉयज कैन बी टुगेदर नॉट टू गर्ल्स कैन बी टुगेदर। ओके, सो दिस अरेंजमेंट मस्ट बी अल्टरनेटिंग अरेंजमेंट विच इंप्लाइज कि या तो पहले बॉय आएगा B1 G1 B2 G2 B3, या तो गर्ल्स से स्टार्ट कर सकते थे, बट अगर गर्ल्स से स्टार्ट करते तो G1 देन आता लेटर से B1 देन G2 देन B2। बट प्रॉब्लम क्या है इस केस में, अब B3 को बाद में नहीं बिठा सकते बिकॉज टू बॉयज विल बी टुगेदर इन दैट केस, तो B3 को हमें स्टार्ट में लाना पड़ेगा, यानी कि बेसिकली बॉय देन गर्ल बॉय देन गर्ल बॉय, ये हमारा सिनारियो बना इफ देयर वर 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। बट एक्चुअल में हमारा केस डिफरेंट है। एक्चुअल केस है पार्ट ए में, देयर आर 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, तो देयर आर मोर नंबर ऑफ बॉयज लेस गर्ल्स। तो अगर हम बॉयज को अरेंज करेंगे तो B1 B2 B3 B4 एंड B5 इनको अरेंज कर दिया। अब गर्ल्स कहाँ कहाँ आ सकती हैं, बेसिकली गर्ल्स कैन बी इन दीज 4 प्लेसेस एंड देन इन दीज 2 प्लेसेस, इन पे भी हो सकता है। बट सिंस बॉयज कैन नॉट बी टुगेदर तो गर्ल्स को इन 4 प्लेसेस पे तो पक्का होना है। हाँ, इन 2 प्लेसेस में से कोई एक प्लेस चूज किया जा सकता है। ठीक है, तो क्लियरली इधर द केस विल बी कि बॉय 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 बॉय, देयर आर 5 बॉयज एंड देन इनके बीच में 4 गर्ल्स आ जाए। एक सेकंड, 4 ही तो गर्ल्स हैं, तो इन 2 प्लेसेस को चूज कैसे करेंगे, बिकॉज 4 प्लेसेस में ही एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो ये प्लेसेस चूज करना पॉसिबल ही नहीं होगा, बिकॉज 4 ही गर्ल्स इन टोटल 5 होती तो फिर 2 में से एक को चूज करना होता। बट सिंस देयर आर 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, देयर इज ओनली वन चॉइस दैट गर्ल्स आर बिटवीन दीज 5 बॉयज। ठीक है, सो दिस विल बी द ओनली सिनेरियो। पहले बॉयज को अरेंज कर दिया 5 फैक्टोरियल वेज में, एंड देन 4 गर्ल्स मस्ट बी प्लेस्ड इन दीज 4 प्लेसेस, एग्जैक्टली इन दीज 4 प्लेसेस, कोई और चॉइस है ही नहीं। तो इन टू 4 में से सारी 4 प्लेसेस को सेलेक्ट करना है, 4C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, दिस इज 5 फैक्टोरियल इंटू 4C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, so this is 120 into 4C4 is nothing but 1 because NCN and 4 factorial is 24, so 120 into 24 2880 number of ways आएंगे when we are arranging 5 boys and 4 girls। ठीक है, क्लियर है। सेकंड सिनेरियो, सेकंड केस when there are 5 boys and 5 girls, now boys and girls both are equal, बोथ आर इक्वल। अगर अनइक्वल होंगे तो भी डेफिनेटली, क्योंकि हमें बॉयज को भी सेपरेटली बिठाना है गर्ल्स को भी सेपरेटली बिठाना है, तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर आर फॉर एग्जांपल 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स है तो पॉसिबल है, या फिर गर्ल्स एक ज्यादा होती कि अगर 5 बॉयज एंड 6 गर्ल्स होता तो वही पॉसिबल होता। ठीक है, बिकॉज उस केस में हम पहले गर्ल्स को बिठाते जो ज्यादा है जी 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 जी, और फिर बीच के 5 प्लेसेस में वी कुड हैव प्लेस्ड बॉयज। तो इन दैट केस आंसर वुड हैव बीन 6 फैक्टोरियल इंटू 5C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, दिस वुड हैव बीन आंसर इफ देयर वर 5 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। ठीक है, बट लेट अस से हमारे पास होते 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। नाउ पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट, क्या पॉसिबल होता बॉयज को और गर्ल्स को अल्टरनेटिव बिठाना, क्या ही पॉसिबल होता। देखो 5 गर्ल्स को बिठा देते हम G1 G2 G3 G4 G5, बट नाउ हमें बॉयज को बिठाना है, बॉयज के लिए वी हैव 4 स्पेसेस, बट प्रॉब्लम यह है कि गर्ल्स को भी साथ में नहीं बिठाना है, तो वी मस्ट हैव एटलीस्ट 4 बॉयज, एटलीस्ट 4 बॉयज इज नीडेड सो दैट गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। बट वो तो है ही नहीं, हमारे पास 3 बॉयज अवेलेबल है, तो यहाँ पे हमारे पास एक भी केस नहीं बनता, 0 केसेस बनते। तो इन एनी सच केस या तो बॉयज और गर्ल्स इक्वल होंगे या बॉयज और गर्ल्स में से एक दूसरे से 1 ज्यादा होगा। ठीक है, सो देर आर ओनली 2 केसेस पॉसिबल, अदरवाइज नो सच केस विल बी पॉसिबल कि हम बिठा ही नहीं पाएंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा पाएंगे। तो केस नंबर 1 था हमारा जहाँ पे कि बॉयज वर 1 मोर देन गर्ल, और केस नंबर बी जो हमारा है वहाँ पे क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल। ठीक है, सो इफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल तो हमारे पास केसेस क्या बनेंगे, यहाँ पे वी कुड प्लेस, पहले बॉयज को बिठा दिया बी 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 बी, 5 बॉयज आर प्लेस्ड, नाउ 4 प्लेसेस बिटवीन द बॉयज, यहाँ पे तो हमें गर्ल्स को बिठाना ही बिठाना है। देन वी हैव 2 मोर एडिशनल स्पेसेस, बट टोटल 5 गर्ल्स हैं, टोटल 5 गर्ल्स हैं, तो इन 4 प्लेसेस पे वी कैन हैव गर्ल्स, एंड आउट ऑफ दीज 2 प्लेसेस किसी एक प्लेस पे हम गर्ल को बिठा देंगे। तो या तो सिनेरियो बनेगा हमारा जीबी 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 जीबी, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय एंड गर्ल बॉय, या फिर बनेगा बीजी 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 बीजी। तो यही 2 केसेस बनेंगे हमारे। ठीक है, तो या तो डिफरेंटली देख लेते दोनों केसेस को, तो दिस वुड हैव बीन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 केसेस आर देयर, तो इंटू 2, या फिर यहाँ से देख लो तो वी कैन से कि पहले बॉयज को बिठा दिया तो 5 फैक्टोरियल बेस से वी कैन अरेंज बॉयज, नाउ मल्टीप्लाइड बाई
These four places are fixed. यहाँ पे तो हमें गर्ल्स को बिठाना ही बिठाना है, तो these four places, all four must be selected into 4C4, and then out of these two, one place has to be selected to into 2C1, and अब हमने 5 places select कर लिए हैं, so now girls can be placed in 5 factorial ways. This is 5 factorial into 4C4 is 1 only, so 5 factorial into 5 factorial into 2, that is 120 into 120 into 2. So 14,400 into 2, that is 28,800. Okay. Clear? ठीक है. Next question. In how many ways can the letters of the word assassination be arranged so that all the S are together? Letters of the word assassination be arranged so that all the S are together. हमें सारे के सारे S को साथ में रखना है. Now कितने letters हैं? 1 2 3 1 2 3 S S I nation. So 6 plus 1 13 letters are total. Out of these 13, there are how many A's? A 3 A's, 4 S, then 2 I's, 2 N's, 11 हो गया, and then हमारे पास क्या बचा है? T and O. 1 T and 1 O. Total 13 letters are there. 3 A's, 4 S, 2 I's, 2 N's, 1 T and 1 O. Now these have to be arranged in such a manner such that all S are together. तो सारे के सारे S को साथ में ही रखना है. So all S must be clubbed together. तो सारे के सारे S का एक ग्रुप बना लेंगे. ठीक है. So A and then all S are together. So this is one group, and then I's, and then N's, and then T, and then O. बाकी सब सेपरेट है अपार्ट फ्रॉम S. नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने आ गए हमारे? These groups are total 13 letters थे. 4 S are there. So 13 minus 4 plus 1, that is equal to 10. 10 आ गए. 3 plus 1 4 plus 6 10. तो 10 factorial ways में we can arrange these 10 groups. 3 A's plus 1 S का ग्रुप 4 हो गए, और फिर 6 4 plus 6 10 ग्रुप्स है हमारे. 10 factorial ways में we can arrange all these 10 divided by. अब देखो ये भी ध्यान रखना है कि चार ये जो S साथ में आ रहे हैं, these 4 S can arrange among themselves. आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल भी करोगे. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ दीज 3 A's ये भी तो आपस में अरेंज हो रहे हैं जब हमने 10 फैक्टोरियल लिखा है, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा. सिमिलरली दीज 4 S, इनको आपस में अरेंज करने के मल्टीप्लाई तो किया है, बट डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, बिकॉज ये चारों के चारों ऐसे ही तो हैं. ऑल दीज 4 आर S एग्जैक्टली सेम. तो आपस में कैसे भी अरेंज करो, पहले कोई भी ऐसा है, बाद में कोई भी ऐसा है, ये चारों S साथ में रहेंगे, तो इसका एक ही केस बनने वाला है. तो वी मस्ट डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल एज वेल. तो बेसिकली ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा. अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, या फिर ना तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, बिकॉज ऑल 4 ऐसा सेम, तो इनका अरेंजमेंट एक ही तरीके से पॉसिबल है. देयर इज ओनली वन वे टू अरेंज देम, दैट इज एस 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 एस. देयर इज नो अदर वे. ठीक है. नाउ 2 I's तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 N's डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल. सो दैट इज ऑल. सो दिस इज 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 2. 10 फैक्टोरियल इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 2 इंटू 2. 6 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 24. तो 3 बच गया. 10 इंटू 3 दैट इज 30 इंटू 5040. ठीक है. तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? दैट इज 504 इंटू 3 1512 फॉलोड बाई 2 zeros. तो 1,51,200 ways will be there to arrange letters of the word assassination such that all the S are together. All the S are together. That will be the answer. Is that clear? ठीक है. Next question. A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of case A exactly 3 girls, case B at least 3 girls, case C at most 3 girls. तो केस ए में हमारा exactly 3 girls are there. तो कमेटी है 7 की कमेटी है. सो इफ देयर आर 3 girls, रिमेनिंग मस्ट बी बॉयज. तो रिमेनिंग बॉयज कितने हो जाएंगे हमारे पास? 4 boys in the committee. In case A, we have to select 3 girls out of 4 girls, because 4 girls are total में, 9 boys are total, 4 boys को select करना है. So that will be 4C3 for girls and 9C4 for boys. 4C3 into 9C4, that will be the answer. 4C3 is equal to 4C1, that is equal to 4, और 9C4 क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल के फर्स्ट 4 टर्म्स डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, तो 9876 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2. 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 9 इंटू 8 इंटू 7,
that is equal to 72 into 7. This is equal to 504. So our answer will be 504 in the case A when there are exactly 3 girls. ठीक है. Case B when there are at least 3 girls. यानी कि गर्ल्स मस्ट बी एटलीस्ट 3. तो या तो 3 गर्ल्स हो सकती हैं या 4 हो सकती हैं और मे बी 5 इफ पॉसिबल. तो 3 गर्ल्स कैन बी देयर. सो इधर इट विल बी 3 गर्ल्स एंड देन 7 है तो 4 बॉयज, और 4 गर्ल्स 3 बॉयज, या फिर 5 गर्ल्स एंड 2 बॉयज हो सकता था. बट क्या पॉसिबल है बिकॉज देर आर टोटल 4 गर्ल्स ओनली. तो 4 से ज़्यादा गर्ल्स तो ले ही नहीं सकते. एटलीस्ट 3 लेना है तो 3 गर्ल 4 बॉयज या फिर 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज. यही 2 केसेस हमारे बनने वाले हैं और यानी एडिशन हो जाएगा दोनों केसेस का. फर्स्ट केस में देर आर 3 गर्ल्स तो दिस इज 4c3 इंटू 9c4. तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. सेकंड केस में दिस विल बी 4c4 इंटू 9c3. फर्स्ट केस इज 504 और सेकंड केस में वैल्यू हो जाएगा 4c4 विच इज इक्वल टू 1. 9c3 इज 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 6. That is 12 sevens are 84. So 504 plus 84, 588. The number of cases in case B will be 588. अब बात करते हैं at most 3 girls वाले केसेस की. थर्ड केस when there are at most 3 girls. So in case C 3 girls maximum हो सकती हैं. So there can be 3 girls 4 boys or 2 girls 5 boys or 1 girl 6 boys और 0 गर्ल 7 बॉयज. 4 केसेस पॉसिबल होंगे. ठीक है. सो दिस विल बी 4c3 इंटू 9c4 प्लस 4c2 इंटू 9c5 प्लस 4c1 इंटू 9c6 प्लस 4c0 इंटू 9c7. नाउ 9c4 इंटू 4c3 है तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है. क्या वैल्यू आया था? 504 आया था. प्लस 4c2 इज 6, 4 इंटू 3 बाई 2 और 9c5 इज एज गुड एज 9c4. 9c5 तो 9c4 हो जाएगा और 9c4 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. क्या वैल्यू आया था 9c4 का? दिस वॉज 9c4. तो बेसिकली 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ. 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 4. तो 9 इंटू 2 इंटू 7 126. 126 वॉज द वैल्यू. तो 6 इंटू 126 प्लस 9c6 इज 9c3 जो भी कैलकुलेट किया था हमने. दैट वॉज इक्वल टू 84 आया था. ठीक है. 9c6 वॉज 84 तो दिस इज 4 इंटू 84 प्लस 4c0 इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 9c7 विच इज इक्वल टू 9c2 इट सेल्फ. ठीक है. 9c2 विच इज इक्वल टू 36. तो ये सारी वैल्यूज आ गई हमारी. 504 प्लस 36 दैट इज 540 प्लस 6 इंटू 126 दैट इज 720 प्लस 36 756 प्लस 320 प्लस 16 336. तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? 540 प्लस ये कितना है? 1092. तो 1632 should be the answer in this case when there are at most 3 girls in the group, in the committee. Okay. Clear? तो ऑल 3 केसेस हमने कर लिए, सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. m men and n women are to be seated in a row such that no 2 women sit together. तो कंडीशन क्या है? no 2 women sit together. यानी कि जब पहले women को अरेंज कर लेते हैं तो अच्छा नहीं पहले women को अरेंज नहीं करते, पहले men को अरेंज करते हैं बिकॉज women कैन नॉट सिट टुगेदर. ठीक है. तो women साथ में नहीं बैठ सकती हैं तो उनको सेपरेटली ही बिठाना पड़ेगा. तो men के बीच में जो प्लेसेस बचेंगे पहले men को अरेंज कर लें और फिर बीच में जो प्लेसेस आएंगे वहाँ पे women को बिठा देंगे. ठीक है. सो लेट्स से men और फिर बीच में जो प्लेसेस आ रहे हैं एक एक वुमेन को बिठाते चलेंगे यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन कितनी वुमेन है. तो बेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मेन क्या होगा? दैट विल बी m फैक्टोरियल बिकॉज देयर आर m men. एंड देन नाउ सिंस n women आर देयर तो हमें n women को प्लेस करना है. तो women कैन बी बिटवीन द men. भाई मेन के लिए कोई कंडीशन नहीं है तो मेन तो कैसे भी बैठ सकते हैं. 2 men कैन बी टुगेदर बट women कैन नॉट सिट टुगेदर. नो 2 men कैन सिट टुगेदर. ठीक है. सो वी कैन ऑल्सो प्लेस women हियर. तो बिटवीन मेन कितने होंगे? अगर हमारे पास लेट अस से 3 men होते, जब भी कंफ्यूजन हो तो 2 प्लेसेस बीच में होते एंड 2 प्लेसेस हियर. ठीक है. तो बीच के प्लेसेस क्या होंगे हमारे? इफ देयर आर 3 men तो बीच के प्लेसेस होंगे 2. इफ देयर आर 4 men the places between them will be 3. So basically if there are m men, places between them will be m minus 1 and then 2 more places at the end points.
ठीक है, तो m minus 1 plus 2 टोटल प्लेसेस फॉर विमेन टू सिट विल बी m plus 1। ठीक है, m plus 1 टोटल प्लेसेस हैं एंड देयर आर n विमेन जिनको कि हमें अरेंज करना है, जिनके लिए प्लेसेस सेलेक्ट करना है। तो आउट ऑफ दीज m plus 1 प्लेसेस वी हैव टू सेलेक्ट n प्लेसेस फॉर विमेन टू सिट। तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ प्लेसेस फॉर n विमेन एंड देन वी हैव टू अरेंज दोज एज n विमेन, तो n फैक्टोरियल से अरेंजमेंट हो जाएगा। ऑल थ्री चीजें, ये तीनों चीजें हमें करनी है। तो m फैक्टोरियल इंटू m plus 1 cn इंटू n फैक्टोरियल, एक बार अननोन को लेके भी कर रहे हैं सो दैट जो हमारा डिस्कम्फर्ट है बहुत सारे बच्चों का, सो वो डिस्कम्फर्ट भी हम हैंडल कर सकें इस क्वेश्चन में। एंड ऑब्वियसली m हैज टू बी ग्रेटर देन n, बिकॉज अगर m n से बड़ा नहीं होगा, m n से ही छोटा हो गया तो फिर बिठा ही नहीं पाओगे, तो दैट इज अ मस्ट कंडीशन। ठीक है, तो m फैक्टोरियल इंटू m plus 1 cn इंटू n फैक्टोरियल, this will be m factorial into m plus 1 cn is m plus 1 factorial divided by, क्या आएगा, divided by this will be m plus 1 minus n factorial into n factorial and this multiplied by n factorial। तो n factorial से n factorial कैंसिल आउट हो जाएगा और यही बचेगा हमारा आंसर, m factorial into m plus 1 factorial divided by m plus 1 minus n factorial। this will be our answer। okay, clear। next question। In a party, there is a custom to shake hands with everyone present. If total number of handshakes in the party was 120, then find the number of persons who attended the party. Handshakes custom है कि everyone should shake hands with everyone present. सबको सबके साथ हाथ मिलाना है। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली क्या होगा, let us say if in the party there are three persons A, B, C, A and C will shake hands, B and C will shake hands, and A and C will shake hands। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, जितने भी दो दो के पेयर बनेंगे हमारे, ऑल सच पेयर्स ऑफ टू दे विल बी शेकिंग हैंड्स वंस। फर्स्ट हैंड शेक तो ए बी का करे, बी ए का करे, एक साथ ही करेगा, दोनों एक साथ ही होंगे। ठीक है, तो इन केस ऑफ शेक हैंड्स इफ देयर आर एन पर्संस, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ शेकिंग हैंड्स क्या होगा, NC2, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ टू पर्संस, टू पर्संस। ठीक है, अगर हैंड शेक की जगह लेट अस से डांसेस भी होता, देयर इज अ कस्टम दैट एवरीवन डांसेस विद एवरीवन प्रेजेंट, यानी कि हमें नंबर ऑफ पेयर्स बनाने पड़ेंगे डांस के लिए भी, कि दो लोगों का एक पेयर बनेगा और वो डांस करेगा आपस में, तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ टू पर्संस दैट नंबर ऑफ वेज विल बी NC2, और इतने ही हैंड शेक्स होंगे, NC2 which is equal to n into n minus 1 by 2, and given है 120 हैंड शेक्स, दिस इज इक्वल टू 120, तो यानी कि n into n minus 1 दिस विल बी इक्वल टू 240, 240। तो दिस कुड बी 15 स्क्वायर इज 225, तो 16 into 15 हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, 16 into 15 दैट इज 240, यानी कि n मस्ट बी इक्वल टू 60। The number of persons in the party will be 60। Okay, क्या क्लियर है? जस्ट इन केस इसके बजाय क्वेश्चन ये कहता हमसे कि एवरीवन, देयर इज अ कस्टम फॉर एवरीवन टू गिव गिफ्ट टू एवरीवन प्रेजेंट। अगर गिफ्ट देने की बात होती इंस्टेड ऑफ शेकिंग हैंड्स, तो डिफरेंस आया था। क्या डिफरेंस आता कि देखो, जब भी हैंड शेक हो रहा है, ठीक है, सो ए एंड बी, कि एक ही बार हैंड शेक करना है, कैन शेक हैंड्स वंस। ठीक है, एक ही बार हैंड शेक करेंगे क्योंकि कंडीशन ये है। बट अगर गिफ्ट दे रहे हैं, सो व्हेन ए इज गिविंग गिफ्ट टू बी दैट इज अ सेपरेट इवेंट, बट व्हेन बी इज गिविंग गिफ्ट टू ए दैट इज अ सेपरेट इवेंट। तो टू गिफ्ट इवेंट्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हैंडशेक का इवेंट तो वन ही हुआ, बट गिफ्ट वाले केस में दो इवेंट्स हो जाएगा। ठीक है, सो इन दैट केस दिस विल बी NC2 into 2, और बेसिकली n into n minus 1 हो जाएगा, तो हर एक कोई n minus 1 लोगों को गिफ्ट देगा, टोटल पर्सन आर n, तो n into n minus 1 विल बी टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट्स दैट विल बी शेयर्ड अमंग देम। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना है कि कुछ केसेस में एक पेयर में एक ही काउंट होगा, जहाँ पे कि हैंडशेक हो गया, डांस हो गया। ठीक है, या कुछ केसेस में जैसे गिफ्ट देना हो गया, वहां पे हमें एक पेयर में दो काउंट करने पड़ेंगे, फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड एंड फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट, बोथ विल बी सेपरेट इवेंट्स। ओके, क्या ये क्लियर है? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज, इट शुड बी। एंड नाउ सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन, pause the video, take your time and solve it। In a TT competition, every player had to play exactly one game with every other player। It was found that in 78 games both the players were women, and in 36 games both the players were men। Find the number of games in which at least one player was women।
ठीक है, कितने ऐसे केसेस होंगे जहां पे कि एटलीस्ट वन प्लेयर इज वुमन? ये सॉल्व करना है हमको, कैसे करोगे? तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है टी टी कॉम्पिटिशन में एवरी प्लेयर हैड टू प्ले एग्जैक्टली वन गेम विद एवरी अदर प्लेयर, यानी कि हैंडशेक जैसा ही केस है, बिकॉज यहाँ पे भी एक गेम होगा, एक बार ही काउंट होगा, एक ही इवेंट होगा, ए और बी साथ में खेलते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है ए बी के साथ खेल रहा है फिर बी ए के साथ, दोनों एक ही बात, तो ए एंड बी आर प्लेइंग टुगेदर. Okay, so it was found that in 78 games both the players were women. When both are women, women versus women, those matches are 78. Similarly, men versus men, those matches are 36. तो अगर women let's say W है, W women है, तो W C2 that is equal to 78. And if men are M, तो M C2 that is equal to 36. तो W into W minus 1 divided by 2, this is equal to 78. 78 क्या होता है? This is 13 into 6. जैसे ही 2 मल्टीप्लाई करोगे, जहां पे प्राइम नंबर दिखे तो उसको यूज जरूर करो, स्ट्रेट अवे आंसर मिलता है, दिखता है. तो नाउ W into W minus 1, दिस बिकम्स इक्वल टू 13 into 12. क्लियरली W कितना है? नंबर ऑफ वुमेन इज इक्वल टू 13. This is equal to 30. Similarly, m into m minus 1 by 2 is 36. m into m minus 1 is equal to 72, which is equal to 9 into 8. यानी कि नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू 9. वुमेन है 13 और मैन है 9. Now question is find the number of games in which at least one player was woman. At least one player was woman, यानी कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कम से कम एक प्लेयर वुमेन हो, क्योंकि दो ही प्लेयर्स इन टोटल हैं, तो या तो एक विमेन होगी या दोनों विमेन होंगी. तो केसेस क्या बनेंगे यहाँ पर? एटलीस्ट वन प्लेयर विमेन में हमें दो केसेस मिलेंगे. वन केसेस व्हेन देयर इज वन वुमन, विमेन वर्सेस मैन, और सेकंड केस कुड बी वुमेन वर्सेज वुमेन. अब वुमेन वर्सेज वुमेन का वैल्यू तो हमें पता ही है, दैट इज 78. और वुमेन वर्सेज मैन में कितने केसेस मिलेंगे? एक वुमेन होगा, एक मैन होगा. वुमेन है 13, तो 13 में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे. मैन है 9, तो 9 में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे. 13 C1 इंटू 9 C1 दैट इज इक्वल टू 117. तो और यानी एडिशन, तो 117 प्लस 78 दिस विल बी आवर आंसर, विच इज इक्वल टू 195. तो 195 मैचेस विल बी देयर इन विच देयर विल बी एट लीस्ट वन वुमन. Option D will be the answer. In 195 matches, there will be definitely at least one more, for sure. Okay. Is that clear? क्या अप्रिशिएट कर पा रहा हूँ? ओके, सो इतना ही रखते हैं इस सेशन में, एंड आई बिलीव जो भी डिस्कस किया सेशन में समझ में आएगा. इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट. और अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल, एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, then subscribe to the channel as well as press the bell icon. That's all for this session. Bye bye, take care, and keep learning.